Hello, dear students. Very good evening, all of you. I'm Chartered Accountant and Company Secretary Pawan Gaukar. Welcome to CA course and welcome to CA Foundation level. Okay, we have 3 levels in CA course: CA Foundation, 4 subjects; CA Inter, 6 subjects; and CA Final, 6 subjects, along with some optional subjects that you have to mandatorily attend. Nevertheless, we will concentrate on CA Foundation here, and accounts, business laws, that's our agenda. Business laws, that's my subject. Business mathematics, logical reasoning and stats, and business economics. We are here to study laws related to business. As a चार्टर्ड अकाउंटेंट हमसे काफी उम्मीद है, ठीक है, कि हमें इकोनॉमिक्स समझे, हमें बिजनेस से रिलेटेड लॉ समझे. सो हियर वी आर स्टडिंग ऑल द बिजनेस लॉज, for CA Foundation, whatever is required at the basic level for business. I'm Chartered Accountant and Company Secretary Pawan Gaukar. I've done my PhD in e-commerce. I'm a fellow Chartered Accountant. I'm a licensed Company Secretary. I've done my Diploma in Information System Audit. That's an exam once you qualify CA. Then I've done my law as well, so that I could be a good teacher for law. And I've done my Masters in Commerce as well. So guys, yes, let's check out the very first chapter of business law, that is Indian regulatory framework. That is Indian regulatory framework, like how the system, as far as regulations are concerned, works. That's our agenda in this chapter. All right, we have many other chapters as well, like we have Indian regulatory framework. That's what we'll do today. We have Indian Contract Act, we have Sale of Goods Act, then we have company law, then we have partnership, then we have LLP and negotiable instruments. That's the entire curriculum. But yeah, our very first agenda of concern, Indian regulatory framework. Indian regulatory framework, what do you mean by law in first place? What are the sources of law? What are the various types of law in the Indian legal system? Like every country will have their own laws, every country will have their own legal system. So हमें Indian legal system पढ़ना है, being okay the citizens of this country, and this course is Institute of Chartered Accountants of India ka course, so we have to study only Indian legal system. Enforcement of law, how the law is executed, who does it, and who are the people who are responsible for execution of this law. Introduction of major regulatory bodies like Ministry of Finance, MCA. Can anyone tell me the full form of MCA? No one? MCA? Correct, Ministry of Corporate Affairs, that's MCA. Then you must have certainly heard about SEBI. Have you heard about SEBI? SEBI? Anyone? SEBI ka full form? Rachna? Ishika? Yes, Securities and Exchange Board of India. Then tell me, what are we missing here? These State Bank of India, Axis Bank, Punjab National Bank, HDFC, Allahabad, Bank of Baroda. We are missing something here. What's the epicenter of all these? Come on. RBI. It is also one of the prominent body who makes sure that the money in India is well regulated. So we have MCA, we have SEBI, we have RBI, we have IBBI. IBBI you must not have heard. मैं बहुत उम्मीद कर लूंगा अगर मैंने आपसे IBBI पूछ लिया तो. अगर कंपनी बंद हो जाती है, अगर कंपनी इंसॉल्वेंट हो जाती है, कोई बैंकरप्ट हो जाता है, तो इसके लिए बैंकरप्सी के लिए स्पेशल लॉज है, उसको कहते हैं IBC, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड. और इसको एग्जीक्यूट करने वाली बॉडी है इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, दैट इज IBBI. All right, we'll study about this, and we'll also study about the last one, that is Ministry of Law and Justice. That's the entire plethora of concepts that we shall cover under the very first chapter, that is Indian regulatory framework. So are we good to go? Shall we start with this chapter? Indian regulatory framework. We'll study what law is, what are the sources of law, and who are the regulatory authorities, who are the bodies who make sure that everything is done well. In a nutshell, this chapter is about what is law, then what are the sources of law, process of making law, and the types of laws. Types of law के अंदर we have criminal law, civil law, common law, and principles of natural justice. Okay, then enforcement of law, like how the law is implemented, and major regulatory bodies, like again जो हमने अभी पढ़ा, Ministry of Finance, MCA. Give me the full form, come on, make it fast. Ministry
Ministry of Corporate Affairs, then SEBI, Securities and Exchange Board of India, RBI, Reserve Bank of India, IBBI, anyone? IBBI? Insolvency and Bankruptcy Board. And at the end, we'll study the structure of Indian judicial system. Like, just let me ask you something. Indian judicial system का पूरा हमें structure समझना है, एकदम short में समझना है. Which place is this? Any clue? By any chance? Have you seen this? You must have seen this place in movies. Correct. This is the Bombay High Court. And you must have certainly seen this place as well. करेक्ट. तो दिस हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट ये हमेशा हमारे मूवीज में दिखा देते हैं हमें. इनके अलावा भी कोई कोर्ट्स होते हैं क्या? वी शैल स्टडी इन एज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ दिस चैप्टर. ऑलराइट, सो गाइस चलो लेट्स स्टार्ट. लेट्स मेक अ हेड स्टार्ट. आ जाइए. हैव यू एवर वंडर्ड, इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर, हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई आर यू स्टडीइंग दिस सब्जेक्ट कॉल्ड एज लॉ? ठीक है. नाउ it is only because it has been prescribed in the syllabus. तो गाइस मेजरली स्टूडेंट्स हर करिकुलम को ऐसे ही देखते हैं कि इंस्टीट्यूट ने हमें या किसी यूनिवर्सिटी ने हमें सिलेबस में दिया तो हम पढ़ रहे हैं. तो रीजन क्या है इसको पढ़ने का? इज इट ओनली बिकॉज यू हैव बीन प्रिस्क्राइब्ड इन द सिलेबस, और इज इट बिकॉज यू विल नीड दिस नॉलेज एज अ मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया? सो चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के बाद क्या हमें लॉ के नॉलेज की जरूरत पड़ेगी? टेल मी. चार्टर्ड अकाउंटेंट तुम बन ही जाओगे. तो रचना, डू यू हैव, आर यू इन टू माइंड्स कि हम सीए बनेंगे या नहीं? नेवर बी. Yes, you should. Yeah, correct. Like when I was a student, like everyone was telling me that this is a difficult course. That's a difficult course. I never accepted that. I always knew कि getting a 50% in any exam, be it any exam, I have the capacity to score 50% no matter how difficult the exam would be. So guys, ऐसा टू माइंड्स में रहना ही नहीं कभी. चार्टर्ड अकाउंटेंट हम लोग बनने आए, हम लोग यहां से बन के जाएंगे. ठीक है. जस्ट अमास ऑल द नॉलेज. तो सीए बनने के बाद क्या हमें लॉ के नॉलेज की रिक्वायरमेंट है? चलो देखते हैं. डू यू नो द कंसेप्ट अबाउट टैक्स? व्हाट इज टैक्स? Whatever amount of money, that income tax का discussion कर लेते हैं. Whatever amount of money we earn, some portion of it, if you are under a taxable limit, some portion of it you have to pay it back to the government, right? That is taxation. तो कितना काट लेंगे टैक्स? 10%, 20%, 50%, कितना काट लेंगे टैक्स? बोलो. Depending on the income. तो इसके लिए भी कोई ना कोई लॉ होगा. व्हाट से गाइस? इसके लिए भी करेक्ट. इसके लिए भी कोई ना कोई लॉ होगा. एनी लॉ टैक्स के लिए? लॉ, एनी क्लू? इशिका, एनी क्लू? इनकम टैक्स एक्ट 1961. सो वी हैव स्पेसिफिक लॉ. चार्टर्ड अकाउंट बनने के बाद ये लॉ आपको पढ़ना ही पड़ेगा, नहीं तो चार्टर्ड अकाउंटेंसी का आप जॉब भी नहीं कर पाओगे, ना ही प्रैक्टिस कर पाओगे. सो गाइस देखते हैं. Awareness of law is essential to become a full-fledged chartered accountant. By the time you'll be a CA, you'll have studied more than 25 laws. This is because a chartered accountant is first level of contact on many legal matters. यानी बहुत सारे legal matters में हम डायरेक्टली वकील के पास नहीं जाते, पहले हम CA के पास जाते हैं. So we should possess knowledge of law so that we can advise our management and our clients on legal matters as a basic और थ्रेशोल्ड लेवल. यानी हम एक्सपेक्ट नहीं करते कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, इंडियन पीनल कोड आए. नहीं, थोड़ा मोटा, छोटा मोटा या फिर एकदम एक रफ नॉलेज रहेगा चार्टर्ड अकाउंटेंट को, आईपीसी का, सीआरपीसी का, लेकिन फुल फ्लेजेड नॉलेज रहेगा ये उम्मीद नहीं करते. लेकिन यार बेसिक लॉ तो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को आना ही चाहिए. एंड दैट्स व्हाई, क्योंकि मेजरली जैसे हम सीए बोलते हैं टैक्स का मैटर दिमाग में आ जाता है. सो वी हैव टू नो दिस. रिमेंबर, okay, some of you may later wish to specialize in subject called as taxation. बहुत लोगों को सीए पढ़ते पढ़ते इंटर से टैक्स का नॉलेज मिलने लगता है, तो काफी लोगों को टैक्सेशन बहुत अच्छा लगता है. So some of you may later wish to specialize in a subject called as taxation. Remember, tax laws are also laws. Tax laws are also laws. In order to become an expert in taxation, you should possess a basic awareness of legal and regulatory framework of our country.
in order to become an expert in taxation, you should possess the basic awareness of legal and regulatory framework of the country. यानी टैक्स का नॉलेज सिर्फ डायरेक्टली टैक्स का नॉलेज या किसी लॉ का नॉलेज ले लेने से काम नहीं बनेगा. हमें पता होना चाहिए कि इंडिया में टैक्स कौन बनाता है, कौन से टैक्स के लिए कौन सी अथॉरिटी है, कौन सी रेगुलेटरी बॉडी कौन से इंडस्ट्री को मैनेज करती है. वी नीड टू नो दैट. लाइक just for information, tell me what is the rate of tax in India. मैंने अगर कोई इनकम बनाई है तो मुझे इनकम टैक्स कितना लगेगा. जैसे मान लेते हैं मैंने 1 करोड़ रुपए कमाए तो मुझे कितना टैक्स कट जाएगा. एनी क्लू? 30% है ना. इंडिया में 30% है. सो इज इट 30% ऑल? देखो 30% इज अप्रोक्सीमेटली करेक्ट. ऑलराइट, 30% इज अप्रोक्सीमेटली करेक्ट. एकदम परफेक्ट फिगर नहीं है 30%, बट इट इज गुड इनफ. क्या हर कंट्री में 30% होता है टैक्स? एनी क्लू? नो. चलो कितना परसेंट टैक्स होगा रचना? एनी गेस कितना परसेंट टैक्स होगा दूसरी कंट्रीज में? एकदम मैक्स अपर लिमिट बताओ, कितना परसेंट टैक्स काट लेंगे? एनी क्लू? इंडिया में तो 30% है. हाँ, इशिका व्हाट अबाउट यू? एनी गेसेस? दूसरे कंट्रीज में कितना टैक्स रेट होता होगा? 60-70%. All right, guys, here we are. The income tax around the world, highest rate of income tax in the countries by 2019 का ये figure है. Sweden 57.19%. Then we have Japan 55.95%. Then we have Austria, the Sweden and Austria and Netherlands, Belgium, Ireland, these are all European countries. Okay, Austria 55%, Netherlands 51.75%, Belgium 50%. यानी तुमने 1 करोड़ कमाया, 50 लाख रुपए गवर्नमेंट के, सिंपल हिसाब. आयरलैंड 48%, ऑस्ट्रेलिया 45%, चाइना 45%, फ्रांस 45%, जर्मनी 45%. और सबको लगता है कि 30% इनकम टैक्स बहुत ज्यादा है. राइट है क्या? ज्यादा बोलो. जिनको 30% इनकम टैक्स बहुत ज्यादा लगता है, इन कंट्रीज में भेजो इनको. तो चलो. सो द पर्पस ऑफ रेगुलेटरी फ्रेमवर्क इज टू प्रोवाइड अ सेट ऑफ The purpose of regulatory framework is to provide a set of uniform rules and regulations that will govern the conduct of the people interacting with each other in personal as well as business relationship. So regulatory framework हमें क्यों चाहिए? That the rule should be uniform. क्या कहते हो? The rule should be uniform for all the people across a particular country. Yes or no? What say? Yes. यानी महाराष्ट्र के लोगों के लिए थोड़ा इनकम टैक्स ज्यादा और असम के लोगों के लिए थोड़ा इनकम टैक्स कम. ये सही है क्या? इज इट राइट? नो. The rule should be uniform, the regulation should be there that will govern the conduct of the people interacting with each other in the personal as well as business relationship. हर जगह, हर किसी का कोर्ट का केस कौन से कोर्ट में जाएगा, सबके लिए रूल्स कॉमन होने चाहिए. ओके, नाउ वी हैव इवॉल्व्ड. डू यू अग्री गाइज? वी हैव इवॉल्व्ड. व्हाट से? वी हैव इवॉल्व धीरे 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 एज अ ह्यूमन बीइंग. बोलो. ठीक है. सो गाइस, मैन इज व्हाट काइंड ऑफ एनिमल? रणवीर कपूर मत बोलना. मैन इज व्हाट काइंड ऑफ एनिमल? हो सोशल एनिमल. नो नो. चलो. डाउन द एजेस मैनकाइंड हैज इवॉल्व्ड फ्रॉम अ हंटर. ठीक है, फ्रॉम अ हंटर गैदरर सोसाइटी थ्रू एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन टू अ कॉम्प्लेक्स सोशल फ्रेमवर्क. गाइस, पहले हम लोग हंटर थे, गैदरर थे, ठीक है, और फिर धीरे धीरे एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से वी बिकेम अ कॉम्प्लेक्स सोशल framework. Man is a social animal. Now, throughout this journey, we have always needed laws and regulation to guide us on the right course of conduct as well as identify violations and punish them. We always need laws and regulations to, school days में were we governed by the school का laws? Tell me. स्कूल में कुछ लॉज होते थे या फिर जनरली जैसा बिहेव करना है वैसा बिहेव करो, कभी भी टिफिन खा लो? यस और नो? है ना. रचना, कभी पनिशमेंट मिली है स्कूल में? कोई ना कोई लॉ वायलेट किया होगा. इशिका, कभी पनिशमेंट मिली है स्कूल में?
यार ये गर्ल्स का ही प्रॉब्लम है, ये लोग इतने अच्छा बिहेव करते हैं, इनको कुछ पनिशमेंट कभी नहीं मिलती। हमारे बॉयज को देखो, हमेशा क्लास से बाहर ही खड़े रहते थे, कोई बात नहीं। सो गाइस, राइट कोर्स ऑफ एक्शन, यू शुड हैव अ गुड कंडक्ट, और अगर वायलेशंस हुए तो आपको पनिशमेंट मिलेगी। अगर वायलेशंस हुए तो आपको पनिशमेंट मिलेगी, ठीक है। सो इंडिया में पनिशमेंट, जैसे इंडिया में हमने, ठीक है, ऐसा, ठीक है, मैं अभी आपको जो भी स्लाइड्स दिखाने वाला हूं, ये थोड़ा सा, ठीक है, ये थोड़ा सा एकदम हो सकता है आपको पसंद ना आए। क्या अगर ऐसा कुछ किया गया, या फिर थोड़ा सा और, क्या मैं थोड़ा और अग्रेसिव दिखा सकता हूं? दिखा सकता हूं? इज इट ओके विथ यू? कैन यू सी इट? Yes, sir. रचना, आर यू ओके विद दिस? Yes. हमने अगर किसी का, हमने नहीं, किसी ने किसी का अगर मर्डर कर दिया, ठीक है, तो क्या उसे पनिशमेंट मिल जानी चाहिए? Yes. कमीशन ऑफ क्राइम और अकम्प्लिशमेंट ऑफ क्राइम, किसी ने किसी के साथ चीटिंग किया, किसी ने कोई कोई चीज चुरा ली, कोई व्हाइट कॉलर क्राइम किया, कोई साइबर क्राइम किया, किसी भी टाइप का चीटिंग किया, तो क्या उसे पनिशमेंट होगी? बोलो Yes. कौन से? अगर मान लेते, एकदम सिंपल जो हमें समझता है वो देख लेते हैं। अगर हम किसी ने किसी का मर्डर कर दिया, तो उसको इंडिया में कौन से लॉ के अंदर सजा होगी? एनी क्लू? कौन से लॉ के अंदर, कौन से कोड के अंदर सजा होगी? कोई ना कोई तो लॉ होगा ना, ऐसे थोड़ी ना मन में आ जाएगा, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लिखा होना चाहिए कि ये केस में ये होगा, वो केस में वो होगा। कम ऑन, एनीवन? द आंसर इज इंडियन पीनल कोड, भारतीय दंड संहिता, इंडियन पीनल कोड 1860, ये उस जमाने में बना हुआ लॉ है, ठीक है। भारतीय दंड संहिता, पीनल यानी पेनल्टी, दंड यानी आपने कुछ गलत किया है तो उसके लिए आपको दंड होगा, आपके खिलाफ एक्शन ली जाएगी। तो गाइस, काम ही है लॉ का कि वी हैव ऑलवेज नीडेड लॉज एंड रेगुलेशन टू गाइड अस ऑन द राइट कोर्स ऑफ कंडक्ट एज वेल एज आइडेंटिफाई वायलेशन। वायलेशन यानी क्या? व्हाट डू यू मीन बाय वायलेशन? when people do not compliance the laws, that is termed as violation, non compliance। जैसे अगर हम लोग ट्रैफिक सिग्नल जम कर जाते हैं तो इज इट अ वायलेशन ऑफ लॉ? क्या ये गलत है? Yes. किसी भी कानून का उल्लंघन करना, किसी भी कानून को फॉलो नहीं करना इज वायलेशन, और उसके बाद उन्हें पनिशमेंट भी दी जाएगी। सबसे पुराना, हमने तो अभी इंडियन पीनल कोड पढ़ा, राइट? मैनकाइंड का सबसे पुराना लॉ, सबसे पुराना कानून माना जाता है कोड ऑफ हम्मुराबी। दिस इज कोड ऑफ हम्मुराबी। थोड़ा हिस्ट्री पढ़ते हैं, आ जाइए। So if we talk about ancient law on the basis of information available from different sources, Code of Hammurabi is known as the oldest law in written form. Code of Hammurabi is known as the oldest law in written form. ये written form वाला law oldest है, हाँ? Written. King Hammurabi ruled Babylon for a period of 1792 BC to 1758 BC। एक मिनट, अभी हम जो जी रहे हैं 2024, 25, 26, ये सब बीसी है या क्या है? बोलो। डोंट यू फाइंड समथिंग रॉन्ग हियर? ये देखो 17 पीछे जा रही है, इजंट इट रॉन्ग? टेल मी। 92 से 58 जा रहा है तो गलत लिख दिया ना मैंने। मॉड्यूल में देखो क्या दिया, रचना क्या दिया है? Sir, 94. इज इट द सेम? Yes. है ना, इट इज द सेम। ये इसका मतलब ये कुछ गलत नहीं हो रहा है, ये सही है। कम ऑन, व्हाट इज बीसी? रचना, इशिका, टेल मी व्हाट इज बीसी? नो वन? Before Christ. बिफोर क्राइस्ट। एंड व्हाट इज एडी? नो, अभी हम लोग जो जी रहे हैं वो बीसी में नहीं जी रहे, हम लोग एडी में जी रहे हैं। एनो डोमिनी, हैव यू हर्ड अबाउट इट? करेक्ट। सो गाइस, ये बहुत ही पुराना लॉ है, यानी लगभग ये जो नजर आ रहा है ये कितना, ये हमारे 2000 साल, और ये पुराने ये पुराने 1300 साल। ये दिस इज रफली 3300 ओल्ड, 3300 years old law।
सो ये रिटर्न में फर्स्ट लॉ था, ठीक है। नाउ he carved the code on bulky stone slabs and covered to place those stones on different places all over the city so that public may have knowledge of the codes. उन्होंने जो भी है पूरे शहर में इसको स्टोन्स पे लिख दिया और सबको इस कोड के बारे में पता होना चाहिए, इसलिए he also appointed judges to check whether the public is following the law or not, whether the public is following the not. So guys, सबसे पुराना लॉ जो रिटर्न में था, सबसे पुराना लॉ कोड ऑफ Hammurabi. Which place? Which place? Which place? Babylon. Babylon. So this was the first of its kind written law right from the era 1792 to 1758 BC. और ये कहां लिखे थे? Where was it written? Where were the written? Were they written on the paper? ये लॉ पेपर में लिखा गया था? No. कहां लिखे गए थे? Stones. Correct. ठीक है, then चलो, what monument is this? What monument? No clue. Ishika, no clue. No, sir. No. Which city is it in? Rome. Rome. Correct. आ जाओ. So in 450 BC, again before Christ, a set of, ठीक है, a set of laws were engraved on 12 bronze tablets in Rome. In 450 BC, a set of laws was engraved on 12 bronze tablets in Rome, which is considered as the first most detailed code of any civilization and called as 12 tables. So yeah, it was done in Rome. 12 bronze tablets. Check out, are they 12? देखो तो जरा. Yes, sir. So the purpose, क्या था इसका purpose? The purpose of these tables was to protect rights to the public and to provide remedy for the wrong, solution. तो लोगों के हक को बचाना ये इनका काम था. All citizens of Rome were supposed to have knowledge of these tables. Over the time, many amendments were done in these laws as per the requirements. Tell me, law में ऐसे changes करने पड़ते हैं क्या? बोलो, law में changes करने पड़ते हैं? लॉ को अपडेट करना, इसी को कहते हैं लॉस को अमेंडमेंट करना. सो अमेंडमेंट्स ऑफ कोर्स इट ऑल स्टार्टेड बैक. जैसे जैसे सिविलाइजेशन चेंज हुआ, जैसे जैसे एनवायरमेंट बदलता है, कंड्यूसिव लॉज भी बनाने पड़ते हैं, इसलिए लॉज में चेंजेस करने पड़ते हैं. ठीक है, जैसे आप कंपनीज एक्ट के बारे में आपने जरूर सुना होगा, राइट? कंपनीज एक्ट के बारे में सुना है? सो नाउ वी आर स्टडीइंग कंपनीज एक्ट 2013. ये लॉ चल रहा है. क्या कंपनीज एक्ट 2013 के पहले भी कोई कंपनीज एक्ट था? एनीवन? 1956. Correct, Companies Act 1956. Now, in this subject, you will be introduced to many laws. हमारे इस subject में you will be introduced to many laws. Therefore, in this chapter, we'll first understand how these laws are made and how they are implemented. So, हम लोग हमारे syllabus में कौन से laws पढ़ने वाले हैं? ठीक है, पहला तो कॉन्ट्रैक्ट इज द फाउंडेशन ऑफ सिविलाइज्ड वर्ल्ड, इसलिए हम लोग पढ़ने वाले इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, राइट? इसलिए हम लोग पढ़ने वाले इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. दो दोस्त मिलके कोई बिजनेस शुरू करते हैं, कोई दोस्त मिलके तो पार्टनरशिप में जाते हैं वो दोनों. तो पार्टनरशिप करने के लिए कौन सा एक्ट बताओ? पार्टनरशिप करने के लिए कौन सा एक्ट? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932. लेकिन पार्टनरशिप के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स थी, इसको कवर करने के लिए एक और लॉ आया. कौन सा? लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट. ठीक है, उसके बाद अगर हमें गुड्स बेचने हैं तो हो सकता है गुड्स में कुछ प्रॉब्लम आ जाए, गुड्स में कुछ खराबी आ जाए, गुड्स रिटर्न करने की नौबत आए, अगली पार्टी को पैसे ना मिले हो, अगली पार्टी को गुड्स ना मिले हो, डिफेक्टिव गुड्स मिले हो, व्हाटएवर, प्लेथोरा ऑफ इश्यूज. सोगा, सेल ऑफ गुड्स एक्ट. ओके, और ठीक है, बहुत सारी ये बजाज, एशियन पेंट्स, आईटीसी, एक्सिस, सिप्ला, एलएनटी, इंफोसिस, एयरटेल, अडानी,
क्या है ये सब? टेल मी द कॉमनलिटी इन ऑल ऑफ दीज. व्हाट इज द कॉमन थिंग? Company. दे ऑल आर कंपनीज. कंपनीज को मैनेज करने के लिए हमारे पास अलग से एक्ट है. व्हाट इज द नेम ऑफ द एक्ट? अभी हमें पता चला है, कंपनीज एक्ट 2013. व्हाट इज दिस? टेल मी. व्हाट इज दिस? Check. इट्स अ चेक. अभी ये चेक 22,35,000 का मिला है मुझे, ठीक है. यानी हम रवूरी मनीष ओझा को दे रहे हैं. मैंने दिया है रवूरी मनीष ओझा को, मैंने चेक दिया है और मेरे अकाउंट में सिर्फ 10 लाख रुपए है. ये चेक क्लियर होगा क्या? बोलो, क्लियर होगा ये चेक? 22 लाख का चेक दिए हो, अकाउंट में 10 लाख रुपए, नहीं क्लियर होगा ये चेक. मेरे खिलाफ एक्शन लेनी है ओझा जी को, तो कैसे लेंगे? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881. सो गाइस, हमारे सिलेबस में वी विल स्टडी ऑल दीज लॉस. तो उन्होंने वही डिस्कस किया है कि in this subject you will be introduced to many laws. Therefore in this chapter we'll first understand how these laws are made and how they are implemented. तो चलो, shall we study what is law? Shall we? Are we good to go? Yes, sir. Yes. What is law? Law is a set of obligations and duties imposed by the government for securing welfare. Obligations and duties for securing welfare. Welfare किसका? Welfare किसका? बोलो. Society. Society का welfare, the welfare of the people. Okay. And providing justice to the society. If someone does wrong, तो जस्टिस मिलना चाहिए. जस्ट इनजस्टिस इज सो नॉट एक्सेप्टेबल. सो लॉ में दिए रहेंगे आपकी क्या क्या ड्यूटीज है, ठीक है, एक्ट की क्या क्या ड्यूटीज है. ऑब्लिगेशंस यानी ड्यूटी के लिए थोड़ा और हायर लेवल का कमिटमेंट वाला वर्ड है obligation. What you are, when you are bound by something legally, these are called as obligation. When you are bound by something legally, that is called as obligation. यानी मम्मी की मदद करना है या नहीं करना है, इसमें मम्मी की मदद नहीं भी करो तो तुम पे कानूनी कोई आंच नहीं आने वाली, राइट? आपके खिलाफ मम्मी केस नहीं करेगी. आई होप आई एम राइट. Yes. Yes. तो गाइस, मॉम ने दिया हुआ काम ड्यूटीज में कवर होगा, लेकिन अगर कोई लॉ हमें कोई ड्यूटी देता है तो वो बन जाते हैं ऑब्लिगेशन. सो व्हेन यू आर legally bound to do something, those are called as obligation. So when it is more formal legally, it is obligation. When it is informal, there is no legal impact, that is called as duties. So law is a set of obligations and duties imposed by the government. क्योंकि law कौन बनाता है? कौन बनाता है law? Go. गवर्नमेंट बनाती है. और ये लॉ, कोई भी लॉ बनेगा फॉर सिक्योरिंग वेलफेयर, जैसे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 एक लॉ है. कौन सा लॉ है? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट. इससे सोशल वेलफेयर कैसा होगा बताओ? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट से सोशल वेलफेयर कैसा होगा बताओ, गेस करो. Consumer exploitation. करेक्ट, कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन नहीं होगा, हो गया ना वेलफेयर. Yeah. अगर किसी के साथ, ठीक है, जैसे जैसे ये बैटरीज है, राइट? और जब मैं ये बैटरीज यूज कर रहा हूं अपने इस माइक में, तो ये बैटरीज माइक को सपोर्ट ही नहीं कर रही, सारी बैटरीज डिस्चार्ज है. तो क्या ये प्रोडक्ट वापस होना चाहिए? बोलो. Yes. Yes. तो गाइस, अगर वो वापस नहीं ले रहा है तो मुझे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर बेनिफिट मिलेगा, मुझे जस्टिस मिलेगा. सो लॉ एक ऐसा, अगली पार्टी पे ऊपर ऑब्लिगेशन डाल देगी. हाँ, अगर वो नहीं लेता है तो मुझे कानून के पास जाना पड़ेगा. सो गाइस, कानून का पूरा फ्रेमवर्क क्या है बताओ, ये हम लोग इस चैप्टर में समझेंगे. इंडियाज लीगल फ्रेमवर्क रिफ्लेक्ट्स द सोशल, political, economic, and cultural aspects of a vast and diversified country. India is a diverse country. What say? India is a diverse country. What say? Very diverse. You change, ठीक है? You change, like अगर आप महाराष्ट्र से, ठीक है, अगर आप महाराष्ट्र से कर्नाटका चले जाते हो, या अगर आप महाराष्ट्र से गुजरात चले जाते हो, आप अगर महाराष्ट्र से एमपी चले जाते हो, महाराष्ट्र से आप दिल्ली चले जाते हो, लैंग्वेज बदल जाती है, ट्रेडिशंस बदल जाते हैं, कल्चर बदल जाते हैं, लोकल कस्टम्स बदल जाते हैं. ट्रू और फॉल्स? Yes. है ना? या वेरी मच. इंडियाज लीगल फ्रेमवर्क, जो लॉ बनेगा इंडियन सोसाइटी को ध्यान में रखते हुए, पॉलिटिकल सिनेरियो को ध्यान में रखते हुए, इंडिया की इकोनॉमी को ध्यान में रखते हुए.
एक जमाने में, अभी हमारा इनकम टैक्स कितना है? इनकम टैक्स कितना है? 30%, राइट? रफली 30%। एक जमाना था जब इनकम टैक्स था 96%। कितना? 9। तो तब तब इकोनॉमी इंडिया की अलग थी, आज इंडिया की इकोनॉमी अलग है। ठीक है, इंडिया का कल्चर काफी सारी जगह पे, लाइक फॉर एग्जांपल आई टेल यू, क्या एक प्रेग्नेंट लेडी अपने बच्चे का जेंडर पता कर सकती है? बोलो इंडिया में। इंडिया में प्रेग्नेंट लेडीज अपने बच्चे का जेंडर पता नहीं कर सकती। यूएस में इट्स वेरी मच अलाउड। व्हाट इज द डिफरेंस? द डिफरेंस इज ऑफ कल्चर। इंडिया में पता नहीं क्यों, लेकिन सबको, everyone expects, everyone wishes for a which child, which gender child? ठीक है, everyone wants a male child, everyone wants a boy। और अगर पता चल जाता था पहले के जमाने में कि लड़का है या लड़की, तो क्या होता था बताओ? तो अगर गर्ल चाइल्ड है तो उसको अबॉर्ट कर देते थे। तो दिस इज सो रॉन्ग, दिस इज सो अगेंस्ट द नेचुरल, अगेंस्ट सच, इट इज सो अननेचुरल थिंग टू डू। आप नेचर का बैलेंस बिगाड़ रहे हो। इंडिया में ऐसा होता था, यूएस में ऐसा नहीं होता। यूएस में ऐसे लोगों का माइंडसेट नहीं है। ये कल्चर का डिफरेंस है। आई एम सैड टू गिव सच ए नेगेटिव एग्जांपल, बट या, इंडिया इज अ डाइवर्सिफाइड कंट्री। इंडिया के सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, कल्चरल एस्पेक्ट्स को समझते हुए आपको लॉ बनाने पड़ते, आपको कानून बनाने पड़ते। तो चलो देखते हैं ये लॉ का सोर्स क्या है। चलो देखते हैं लॉ का सोर्स क्या है। चलो एक बात बताओ, इंडिया में लॉ कहां बनता है? बोलो, इंडिया में लॉ कहां बनता है? करेक्ट, करेक्ट। इंडिया में लॉ बनता है यहां। देखा है ये जगह? देखी है आपने? ये जगह देखी होगी कहीं ना कहीं, टीवी में जरूर देखी होगी आपने ये जगह। अब तो नया बन गया है, बट इंडिया लेवल पे अगर लॉज बनाने हैं तो वो बनते हैं पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में। इंडिया में अगर लॉज बनाने हैं तो वो बनते हैं पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में, इंडिया लेवल के लॉज, राइट? सो दिस इज द ओल्ड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया का, पार्लियामेंट का बिल्डिंग, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया का बिल्डिंग। दिस इज द न्यू पार्लियामेंट ऑफ इंडिया का बिल्डिंग। ऑलराइट, दिस इज द न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग। सो गाइस, हमारे इंडिया लेवल के लॉज बनते हैं पार्लियामेंट में, हमारे इंडिया लेवल के लॉज बनते हैं पार्लियामेंट में। हमारे स्टेट लेवल के लॉज कहां बनते हैं बताओ? स्टेट लेवल के लॉज कहां बनते हैं? स्टेट लेवल के लॉज बनते हैं, बताता हूं मैं आपको धीरे धीरे। तो चलो, सोर्सेज ऑफ लॉ, द मेन सोर्सेज ऑफ लॉ, द मेन सोर्स ऑफ लॉ इन इंडिया आर द कॉन्स्टिट्यूशन। वो कॉन्स्टिट्यूशन इज द मेन सोर्स ऑफ लॉ। तुमने सुना होगा ना, संविधान, संविधान, ये सुना है क्या वर्ड संविधान? इंडिया में कोई भी लॉ बनेगा उसका बेस रहेगा द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, उसका बेस रहेगा द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सो गाइज, ये लोग लॉज बनाते जरूर है, द पार्लियामेंट गाइज, पार्लियामेंट के लोग, पार्लियामेंट के लोग जिनको हम लोग चुन के लाते हैं, वो कहां बैठते हैं? कहां बैठते हैं? हाँ, क्या कहते हैं इस जगह को? क्या कहते हैं? ये दो जगह है जहां पे इंडिया के लॉ मेकर्स बैठते हैं। कौन सी ये दो जगह? एनी क्लू? दिस इज, you have heard of it, you have heard of it so many times, I tell you, लोकसभा। ठीक है, एंड ऑफ कोर्स आई एम वेरी श्योर आपको अपने आप ही पता चल गया होगा, विच इज द सेकंड प्लेस? एब्सोल्युटली करेक्ट। थोड़ा सा हिंट दे दो सर, हम समझ लेंगे। द आंसर इज राज्यसभा। तो इंडिया में हमने जो चुन के लाए लोग, लोकसभा, लोगों ने जो चुना है लोगों को, वो कहां बैठते हैं? लोकसभा में, इसलिए उसको लोकसभा कहते हैं। ये लोग कौन है? एमपीज, मेंबर्स ऑफ, कौन है ये लोग? मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। सो गाइस, द मेन सोर्स ऑफ लॉ इन इंडिया आर कॉन्स्टिट्यूशन, द स्टैट्यूट्स और लॉ। व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड स्टैट्यूट्स? स्टैट्यूट्स यानी एक्ट मेड बाय द पार्लियामेंट। कौन बनाता है ये? पार्लियामेंट बनाता है। और जैसे एक एक्ट है इंडियन स्टैम्प्स एक्ट 1899, एक एक्ट है
इंडियन स्टैम्प्स एक्ट 1899। ये इंडिया लेवल का लॉ है या महाराष्ट्र लेवल का लॉ है, बताओ। इंडिया। तो ये बनेगा पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में, ये बनेगा पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में। एक और एक्ट है, द बॉम्बे स्टैंप एक्ट 1958। तो बॉम्बे स्टैंप एक्ट ये भी पार्लियामेंट में बना होगा या महाराष्ट्र का लेजिस्लेटिव असेंबली में बनेगा, बोलो। महाराष्ट्र के लेजिस्लेटिव, ठीक है, विधानसभा में बनता है ये, इसको विधानसभा कहते हैं। ठीक है, सो गाइस पार्लियामेंट बनाता है सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल पे, और स्टेट असेंबलीज, ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबलीज कहते हैं उसको, स्टेट असेंबलीज, हर स्टेट की अपनी अपनी असेंबली होती है। ठीक है, सो उसके बाद आपका सोर्स ऑफ लॉ है कॉन्स्टिट्यूशन, स्टैट्यूट्स यानी लॉ, उसके बाद पार्लियामेंट और स्टेट असेंबलीज, उसके बाद प्रेसिडेंट्स और जुडिशियल डिसीजन। प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट यानी क्या, लॉ। काफी बार जजेस ऐसे डिसीजन देते हैं, काफी बार जजेस ऐसे डिसीजन देते हैं जो बहुत बड़ा एग्जाम्पल सेट हो जाते हैं आने वाली ऐसी हर सिचुएशन के लिए, जो एग्जाम्पल बन जाते हैं आने वाले हर ऐसी सिचुएशन के लिए, उनको कहते हैं प्रेसिडेंट्स। क्या कहते हैं उनको, प्रेसिडेंट। जजेस ने जो डिसीजन दिए प्रेसिडेंट बन गए, प्रेसिडेंट यानी मिसाल बन गए वो। तो इन जजमेंट्स को यूज किया जाता है एज अ लॉ कि जज साहब इस केस में तो ये जजमेंट आया था, हमारे मुवक्किल का भी केस इसी केस से जैसा है, हम लोग इस डिसीजन का, इस केस का डिसीजन यूज करके इस कोर्ट का कीमती वक्त बचा सकते हैं। बोलते हैं ऐसे जज, कोर्ट, सॉरी, एडवोकेट्स, लॉयर लोग बोलते हैं कैसे, हम कोर्ट का कीमती समय बचा सकते हैं, बोलते हैं ऐसा। ठीक है, प्रेसिडेंट्स और जुडिशियल डिसीजन, जिनको प्रेसिडेंट नहीं समझता है, आप जुडिशियल डिसीजंस को भी समझ जाएंगे, ऑफ द वेरियस कोर्ट्स एंड इन सम एस्टैब्लिश्ड केसेस एंड इन सम केसेस एस्टैब्लिश्ड कस्टम्स एंड यूजेजेस। कस्टम्स एंड यूजेजेस, व्हाट डू यू मीन बाय कस्टम्स एंड यूजेजेस? पुराने रीति रिवाज, हम पुराने जमाने से ये करते आ रहे हैं तो ये भी कानून बन जाता है। हम पुराने जमाने से ऐसा करते आ रहे हैं तो ये भी क्या बन जाता है, बोलो क्या बन जाता है, कानून बन जाता है। इसको कहते हैं कस्टम्स, कस्टम्स एंड यूजेजेस। कस्टम्स यानी रीति रिवाज, यूजेसेस यानी चलन, हमारे यहां ऐसा ही होता है। सुना है कि कभी ये डायलॉग, हमारे यहां तो ऐसा ही होता है। ठीक है, तो गाइस उसको यूजेजेस कहते हैं। दीज आर द वेरियस सोर्सेस ऑफ लॉ, जस्ट गो थ्रू इट एंड लेट मी नो इफ देयर समथिंग दैट कैन हेल्प यू विथ, कोई पॉइंट जो नहीं समझा है। सो व्हाट आर द वेरियस सोर्सेस ऑफ लॉ? सबसे पहला भारत का संविधान, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद कोई भी एक्ट, दैट इज कॉल्ड एज स्टैट्यूट्स और लॉज मेड बाय द पार्लियामेंट। ये इंडिया लेवल के लॉज पार्लियामेंट बनाता है, और स्टेट लेवल के लॉज स्टेट असेंबली बनाता है। जैसे आपने देखा होगा पेट्रोल के रेट्स, ठीक है, रचना, व्हाट इज द रेट ऑफ पेट्रोल इन दिल्ली? पेट्रोल का रेट इन दिल्ली, यू ट्रैवल बाय मेट्रो क्या? No, sir. Okay, so do you know the rate of petrol or diesel in Delhi? Um, मम्मी को नहीं पूछना है, इट्स कंप्लीटली ओके। सो गाइस, no, no, no. No idea. so the rate of petrol in Delhi and Ishika, the rate of petrol in Pune, are they same? Are they same? Yes. नहीं, the rate will differ from state to state, क्योंकि कौन सी गवर्नमेंट कितना वैट चार्ज करेगा ये स्टेट डिसाइड करते हैं। यानी कुछ लॉज इंडिया लेवल पे बनते हैं पार्लियामेंट में, कुछ लॉज स्टेट असेंबलीज में बनते हैं। ठीक है, सो सो रचना और निशिका, कल की क्लास में तुम दोनों अपने अपने पेट्रोल के, अपने अपने सिटीज के पेट्रोल के रेट्स पता कर लेना। सुबह कुल, Yes.
ठीक है रचना, सॉरी इशिका, व्हाट इज द रेट ऑफ पेट्रोल इन पुणे? 106. 106 rupees. So I'm very sure Rachna in Delhi it should be less than 106. Delhi charges less tax. Okay. I'll tell you. Yeah. So yeah, the sources, customs and whatnot. So chalo, sources of law, the main sources, ठीक है, the main source of Indian law or constitution. You must be aware that in India, that parliament, the India is a parliamentary democracy. Ours is a democracy. India is a democracy. India is a democratic country. Yes. कैसे क्या? How come India is a democracy? Anyone? Written in Constitution. Constitution has made us a democratic country, but what makes us really democratic? Sir, we have the right to vote. We have the right to vote, and everyone has an equal right to vote. One person, one vote, right? So everyone has a say in who will be the minister of the state, who will be the chief minister of Maharashtra, who will be the chief minister of Delhi. You have a say if you can vote. Who will be the prime minister of India? Directly or indirectly, we have a vote. So when everyone has a say, it is a democratic country. When you do not have a say, कौन बनेगा प्राइम मिनिस्टर, कौन बनेगा प्रेसिडेंट, वो लोग ऊपर के ऊपर खुद ही डिसाइड करते हैं. मैं बनूंगा. तो हिटलर जो बना था, जर्मनी का डिक्टेटर, वो डेमोक्रेसी था क्या? बोलो. नहीं, वो डिक्टेटरशिप थी. सो इंडिया इजंट लाइक दैट. मोदी जी बोल रहे हैं मैं बनूंगा तुम्हारा प्रधानमंत्री, ऐसा नहीं होगा, हम डिसाइड करेंगे. सो गाइस, इंडिया इज अ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी. वी हैव कंस्टिट्यूशन, we have constitution, and which is the basis and source of all the laws. We have a constitution which is a basis and source for all the laws. कोई भी इंडिया में कानून बनेगा वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं होगा. We elect our representatives to the parliament as well as to the legislative assemblies of various states. हम चुनते हैं. ये जो बैठते हैं ना, ये लोग यहां पे जो बैठते हैं ना, वो हम चुनते हैं इनको. मेंबर्स ऑफ जो भी लोकसभा, नाम ही ना उनका लोकसभा. लोकसभा यानी क्या? लोगों ने चुना है उनको. ये लोगों के प्रतिनिधित्व बैठे हैं यहां पे, लोगों के रिप्रेजेंटेटिव्स बैठे हैं यहां पे, हमने चुना है इनको. दूसरे होते हैं मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, जो इंडिया के लिए, जिन्होंने बहुत हमारे इंडिया का नाम रोशन किया है. सचिन तेंदुलकर, ठीक है, and many good people who are eminent personalities of India become the member of parliament by the route of Rajya Sabha. Like Sachin Tendulkar was once upon a time a member of the parliament. He was a Rajya Sabha member. Okay, so yeah, Lok Sabha and Rajya Sabha. तो ये लोग पार्लियामेंट में बैठ के हमारे लिए लॉज बनाते हैं. We elect our representatives. How do we elect our representatives? Through Voting. through vote. Yeah, elections. We elect our representatives to the parliament as well as legislative assemblies of various states. These representatives of the people make laws in the parliament or in the state assemblies. हर स्टेट की अपनी अपनी असेंबली होगी. महाराष्ट्र की असेंबली को क्या कहते हैं? विधानसभा. So parliament, so the parliament is the ultimate law making body. The law passed by the parliament may apply throughout all or a portion of India, whereas the law passed by the state legislature apply only within the borders of the concerned state. जो मैंने आपको पहले ही बता दिया था. So parliament is the ultimate law making body. The laws passed by the parliament may apply throughout all. पूरी इंडिया को अप्लाई होगा पार्लियामेंट में बना हुआ लॉ, या काफी बार कुछ एरियाज को एप्लीकेबल नहीं होता है. जैसे बहुत सारे लॉस पहले जम्मू और कश्मीर को एप्लीकेबल नहीं होते थे. अगर आप पुराना कोई लॉ का बुक उठा के पढ़ोगे 4 साल पहले के तक पुराना, तो काफी सारे लॉज में आपको मिलेगा दिस एक्ट इज एप्लीकेबल थ्रू आउट इंडिया एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर. तो ऐसा पहले होता था. नाउ इन्हें लॉ बनाने की प्रोसेस जाननी है आपको. डू यू वांट टू नो लॉ बनाने की प्रोसेस? Yes. लॉ बनाने की प्रोसेस को कहते हैं एनैक्टमेंट. तो पहले हमारे जो ये आईएएस ऑफिसर्स होते हैं ना, सुना है कि तुमने आईएएस आईपीएस, हैव यू हर्ड? Yes. वैसे आईएलएस भी होते हैं, इंडियन लीगल सर्विस. इंडिया के लिए कानून बनाते हैं वो लोग.
वो लोग बिल ड्राफ्ट करते हैं. ये बिल is presented before the cabinet. This bill is presented before the cabinet. If cabinet feels, cabinet are the main ministers of a country. If the cabinet ministers feel that we really require this law, तो फिर ये प्रेजेंट होता है पार्लियामेंट में. पार्लियामेंट में there are two sabhas, there are two houses. What are those? करेक्ट. तो जो भी हाउस सेशन में है, जैसे मान लेते हैं पहले लोकसभा सेशन में है, तो लोकसभा में जाएगा. लोकसभा इसको अगर 50% से ज्यादा वोट्स देती है तो ये जाएगा राज्यसभा में. राज्यसभा ने भी अगर इसको पास कर दिया तो ये जाएगा किसके पास? अब किसके पास जाएगा? ये लॉ बनने की लास्ट स्टेप. अगर हमारे लोकसभा, हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स ने इस कानून को एक्सेप्ट कर लिया, हमारे इंडिया की एमिनेंट पर्सनालिटीज ने, राज्यसभा मेंबर्स ने इसको एक्सेप्ट कर लिया, अब ये जाएगा इंडिया के प्रेसिडेंट के पास. इंडिया के प्रेसिडेंट ने अगर इसको असेंट दे दिया, हाँ कह दिया, अब ये बन जाएगा एक लॉ, एक स्टैट्यूट. इस प्रोसेस को लॉ मेकिंग प्रोसेस कहते हैं, इसको कहते हैं एनैक्टमेंट. प्लीज मेक इट, प्लीज राइट इट डाउन. दिस विल हेल्प यू फॉर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम. All right, I hope it is done. Is it done, guys? So ये सब जाता है पहले लोकसभा, फिर राज्यसभा, फिर प्रेसिडेंट इसको असेंट देगा, तब ये बनेगा लॉ. The Government of India Act 1935 passed by the Parliament of United Kingdom. ओए यूनाइटेड किंगडम क्यों पास करेगा? क्यों पास करेगा? सर देन वी वे नॉट इंडिपेंडेंट. तब इंडिया कोई कंसेप्ट था ही नहीं. सो या the government of India passed the Parliament of United Kingdom is the precursor of Constitution of India. ठीक है. So it's the precursor of Constitution in India. जब Constitution नहीं था तब Government of India Act लगता था. It defines the characteristics of the government from unitary to federal. Unitary यानी क्या? What do you mean by unitary government? What do you mean by federal government? Any clue? Unitary government, federal government. Single government. अगर सिंगल गवर्नमेंट है तो यूनिटरी गवर्नमेंट, और एक एक स्टेट का अपना अपना गवर्नमेंट है तो फेडरल गवर्नमेंट. तो इंडिया यूनिटरी है, फेडरल है? बोलो. Federal. फेडरल. परफेक्ट. परफेक्ट. सो it defines the characteristics of government from unitary to federal. Powers were distributed between center and state to avoid any disputes. यानी सेंट्रल गवर्नमेंट अलग और स्टेट गवर्नमेंट अलग, और दोनों की अपनी अपनी पावर्स. यस और नो? यस. तो इंडिया को प्राइम मिनिस्टर बन मिलता है, हर स्टेट को कौन मिलता है? चीफ मिनिस्टर. In 1937, federal court was established and had jurisdiction of appellate, original, and advisory. So the powers of the federal court was established and had jurisdiction of appellate, original, and advisory. So ये appellate, original और advisory क्या होता है हम लोग डिस्कस करेंगे थोड़े समय बाद. चलो बता ही देता हूं मैं आपको. कोई मैटर अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाता है, कोई मैटर अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाता है
ठीक है, यानी कोई मैटर उस डिस्ट्रिक्ट का है तो पहले उस डिस्ट्रिक्ट में वो कन्फ्लिक्ट जाएगा, तो डिस्ट्रिक्ट में जाएगा तो उस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ही जाएगा वो केस पहले। तो ये कौन सा जुरिस्डिक्शन हुआ? ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। जुरिस्डिक्शन यानी पावर, jurisdiction यानी power of a particular court for a particular area, for a particular aspect, for a particular level, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज jurisdiction, एक पर्टिकुलर इलाका। तो वो मैटर पहले कहां गया? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से हम खुश नहीं है। क्या ऐसा हो सकता है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के डिसीजन से हम खुश नहीं है? कैसा हो सकता है कोर्ट के डिसीजन से हम खुश नहीं है? कैसा हो सकता है? तो हमारे साथ जस्टिस नहीं हुआ है, मेरे साथ अन्याय हुआ है जज साहब। अगर आपके साथ किसी भी मैटर को लेकर अन्याय हुआ है तो आप है अग्रीव पार्टी। कैसी पार्टी हो आप? अग्रीव पार्टी। आपके साथ अन्याय हुआ है, आपके साथ बहुत गलत हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए था आपके साथ। तो क्या हम लोग शैल आई गो टू द हायर कोर्ट? मैं जज साहब ऊपर के कोर्ट में जाऊंगा। सुना है क्या आपने डायलॉग? आई विल गो टू द कोर्ट, आई विल गो टू द हायर अथॉरिटी, ऐसा बोलते हैं क्या? ये मैटर मैं अपील करूंगा, हाई कोर्ट में अपील करूंगा, इसको कहते हैं अपील। तो हाई कोर्ट क्या हुआ? हाई कोर्ट के पास ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन नहीं है इस केस का। हाई कोर्ट के पास कौन सा जुरिस्डिक्शन है? करो गेस, करो गेस। ब्यूटिफुल, हाई कोर्ट के पास एपेलेट जुरिस्डिक्शन है। हाई कोर्ट के पास एपेलेट जुरिस्डिक्शन है। तो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन हो गया, एपेलेट जुरिस्डिक्शन हो गया। छोटी कोर्ट्स बड़ी कोर्ट को मदद मांगते हैं कि यार ये केस सॉल्व करने में हमारी प्लीज हेल्प कर दी ऑनरेबल कोर्ट। तो जब आप मदद करते हो तो आप एडवाइजरी रोल में आते हो। तो फेडरल कोर्ट जो था, पुराना कोर्ट, वाज एस्टैब्लिश एंड हैड द जुरिस्डिक्शन ऑफ एपेलेट। एपेलेट भी था, अपील भी कर सकते थे उनके पास, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन भी था उनके पास, और एडवाइजरी, तीनों रोल था। द पावर ऑफ एपेलेट, the powers of appellate jurisdiction extended to civil and criminal cases, whereas the advisory jurisdiction was extended to the powers of federal court to advise governor general in the matters of public opinion. धीरे धीरे, पहले तो उनके पास ओरिजिनल और एपेलेट तो था ही, क्रिमिनल केसेस और सिविल केसेस भी वो लोग जज कर सकते थे, द फेडरल कोर्ट। और फिर गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल कौन? हु वाज द गवर्नर जनरल? गवर्नर जनरल ने कौन? पहले जब पुराना लॉ था, जब ब्रिटिशर्स थे तो प्रेसिडेंट नहीं थे, तो तब कौन थे? कंट्री के प्रेसिडेंट नहीं थे, तब कौन थे? गवर्नर जनरल। तो फेडरल कोर्ट एडवाइस भी करता था। अब सुनो ना, फिर क्या हुआ? फिर द फेडरल कोर्ट ऑपरेटेड फॉर 12 ईयर्स। ठीक है, फेडरल कोर्ट ऑपरेटेड फॉर 12 ईयर्स, 1937 में बना, और फेडरल कोर्ट ऑपरेटेड फॉर कितना ईयर्स? 12 ईयर्स। क्यों? अरे सर, फेडरल कोर्ट वो थोड़ी सी अरेंजमेंट थी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के अंदर उन्होंने तो कुछ तो बना दिया कि इंडिया के पास कोई तो कोर्ट हो। 12 साल तक ये चला, और फिर इंडिया ने उस फेडरल कोर्ट को कन्वर्ट कर दिया, हिंदुस्तान ने, इंडिया ने उस फेडरल कोर्ट को कन्वर्ट कर दिया अपने हिसाब से। करेक्ट? फिर बना हमारा, बोलो क्या बना? सुप्रीम कोर्ट। फिर बना हमारा सुप्रीम कोर्ट। द फेडरल कोर्ट ऑपरेटेड फॉर 12 ईयर्स and heard roughly 151 cases. The federal court was supplemented by India's current apex court, that is the Supreme Court of India. ठीक है, it was not supplemented, sorry I pronounced it wrong. The federal court was supplanted. What do you mean by the word supplanted? Any clue? Replaced. The federal court was supplanted by the India's current apex. सप्लांटेड का एक्चुअल मतलब है सुपरसीडेड, लेकिन अगर मैं आपको सुपरसीडिंग बताऊंगा तो और 5 मिनट एक्सप्लेन करना पड़ जाएगा, उससे अच्छा है सप्लांटेड का इजी मतलब है रिप्लेस्ड। सो व्हाट डू यू मीन बाय एपेक्स? व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड एपेक्स? हाईएस्ट कोर्ट। परफेक्ट। 12 इयर्स तक ये काम किया एंड देन इट वाज रिप्लेस्ड बाय द एपेक्स कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। इंडिया में हम सबको फंडामेंटल राइट्स है, राइट? डू वी हैव द फंडामेंटल राइट? Can you name me, can you help me with some fundamental rights? मुश्किल है थोड़ा, ट्राई कर सकते हो? Any fundamental rights that you know of? Right to speech. Very good, very good, very good.
Right to equality, right to freedom, right against exploitation, right to freedom of religion, culture and educational right, and right to constitutional remedies. ये सब कहां से आया है? ये सारे राइट्स कौन देता है हमें? कौन देता है हमें सारे राइट्स? Constitution. Constitution of India. तो चलो, the Constitution of India 1950 is the foremost law that deals with the framework within which our democratic system works. And our laws are made for the people by the people. सुना है क्या लैंग्वेज फॉर द पीपल बाय द पीपल? सुना है? कौन से सब्जेक्ट में पढ़ा है तुमने बचपन में? बताओ. सॉरी, Civics. civics. Correct. Rachna, you said something. What was the subject? Political science. Civics also. Civics. Correct. Political science, you said? Political science? Yes. वेरी गुड, वेरी गुड. सो गाइस, हमने ये सिविक्स में, पॉलिटिकल साइंस में, सोशल साइंस में ये सब लैंग्वेज पढ़ी हुई है. ऑफ द पीपल, बाय, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल. द कॉन्स्टिट्यूशन आल्सो प्रोवाइड्स फॉर एंड प्रोटेक्ट्स सर्टेन फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन. इट आल्सो लेज डाउन द फंडामेंटल ड्यूटीज एज वेल एज पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ द गवर्नमेंट, बोथ सेंट्रल एंड स्टेट. बाय द टाइम अब तक तो आपको समझ गया होगा सेंट्रल और स्टेट अलग अलग चीज है. करेक्ट? Yes. The laws in India are interconnected with each other, forming a hybrid legal system. हमारा जो सिस्टम है वो हाइब्रिड लीगल सिस्टम है. जैसे जीएसटी, ठीक है, ये एक हाइब्रिड कॉन्सेप्ट है. आप इंटर में जाओगे तो और पढ़ोगे. इंटर में जाओगे क्या बाय द वे? ओए सीए इंटर में जाओगे क्या? Yes. The people who wrote the constitution decided to divide the lawmaking power between central government and various state government. So Indian constitution has three lists. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की तीन लिस्ट है. सेंट्रल लिस्ट यानी जो लॉज सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट बना सकता है. दूसरा स्टेट लिस्ट, जो लॉज सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट बना सकता है. और तीसरा है ज्वाइंट लिस्ट, जो सेंट्रल और स्टेट दोनों बना सकता है. तो तीन लिस्ट है, हाईलाइट कर लो इसको. डिपेंडिंग ऑन द लिस्ट इन विच इट फिगर्स, अ मैटर वुड बिकम the subject for central law or state law. For example, income tax is a central subject. What do you mean by this? Income tax is a central subject. इनकम टैक्स पूरी कंट्री में एक ही रहेगा भाई. तू केरला में रहे या कर्नाटका में या आसाम में रहे या मध्य प्रदेश में, इनकम टैक्स सेम रहेगा पूरे इंडिया में. दैट्स व्हाई इट्स अ सेंट्रल गवर्नमेंट सब्जेक्ट. इनकम टैक्स के लॉस कोई भी स्टेट गवर्नमेंट नहीं बनाती. तो वो कौन से लिस्ट में रहेगा? कौन से लिस्ट में रहेगा बोलो? इनकम टैक्स सेंट्रल लिस्ट. परफेक्ट. So throughout India, we have only one law for income tax, which is implemented by the central government through Ministry of Finance. यानी पैसों से related matter है ना, finance ministry ये काम करेगी. We also have matters for which both central as well as state government can pass laws. Levy of stamp duty, यानी stamp duty कितनी चार्ज करना है? Stamp duty, do you remember? Stamp duty के लिए मैंने आपको दो लॉ बताया है. Do you remember? इंडियन स्टैम्प्स एक्ट 1899, ये इंडिया लेवल का लॉ है. और क्या महाराष्ट्र के लिए अलग लॉ है स्टैम्प ड्यूटी के लिए? बोलो. बॉम्बे स्टैम्प एक्ट. ठीक है, तो इसके लिए दोनों बना रहे हैं. तो कौन सी लिस्ट में आएगा ये बताओ? कौन सी लिस्ट में आएगा? ब्यूटिफुल, व्हाट नॉलेज. बोथ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट हैव लॉज गवर्निंग द लेवी ऑफ स्टैम्प ड्यूटी. ऑलराइट, सो गाइस, इज इट क्रिस्टल क्लियर? Yes, sir. Yes. ऑलराइट. All right, so guys, whatever we have covered in this lecture, we have a quiz on this. There are 3 questions in it. Every question you get 30 seconds to answer. There will be 4 options. One option will be right. The one who does it right and the one who does it the fastest will get maximum points out of 1000. So it's a quiz of total 3000 points. Are we ready? Are we good to go? Yes, sir. All right, guys. First question, 30 seconds may you have to answer. Rather, you have to answer it correctly as well as fast. There is only one answer. Make the right choices. All right, super cool. First question, go, go, go. India's legal framework does not reflect which of the following aspects: social, political, racial, cultural. All right, correct. They do not reflect any kind of aspect in the form of racial issue. We do not believe in any kind of racism. So guys,
Yes, they have. They cover the social scenario. They cover the political scenario. They even cover the economic scenario and cultural scenario. But racial issues they do not cover. We do not believe in that as a country. That is unconstitutional for our country. All right, let's check out the leaderboard. Oh, Ananya, Shrushti, Ujjwal, Ishika, Aditya, Rachna, Pranay, Zlatan, Johanna, Rushank. All right. Tough competition we have. Ananya was the fastest out of this 1000 points. She has got 969 points. All right. The fastest that I've seen, I've been conducting this quiz for 5 years now. The fastest that I have seen till date is 994 points out of 1000. So, anyway, shall we go ahead with the next quiz? Shall we? Next question. All right. Yes. All the best. Here we go. Go, go, go. Code of Dash is known as the oldest law in written form. Humayun, Akbar, Hammurabi, Himatullah. Code of Code of Hammurabi is known as the oldest law in written form. So, guys, yeah, this is where you might have an edge over others. Ananya is not losing her position by no means. Ishika, oh, Rachna was the fastest, if I'm not wrong. She gets the benefit. Ishika is at top, followed by Ananya, then Rachna, and then Johanna. All right, Shrishti's usual, Aditya, Pranay, Latan, and Rushank have struggled with the second question. Any which ways, guys. Last question. Are we ready? All right. Yes, sir. Last question. Go, go, go. Dash is the foremost law that deals with the framework within which a democratic system works. Our laws are made for the people and by the people. So what is the foremost law? यानी इंडिया में अगर कोई भी लॉ बनेगा तो हमें पहले ये चीज चेक करनी है जिसके फ्रेमवर्क के अंदर हमारा डेमोक्रेटिक सिस्टम काम करता है, जिसके फ्रेमवर्क के अंदर हमारा लॉ बनाया जाता है फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल. The answer is, this is easy answer. The answer is the Constitution of India. Reserve Bank of India is one of the laws in India. RBI Act is one of the laws for, especially for the banking system and especially for the financial arrangement, especially for the foreign exchange. RBI काम करता है. Otherwise else it contract act है, ये बहुत ही business से related laws है, पूरी country से related law नहीं है ये. The foremost law India का पूरा basic जो भी सिस्टम है वो सब कुछ है कॉन्स्टिट्यूशन. कोई भी लॉ इंडिया का अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, अलाउड नहीं है. ऑलराइट, सो लेट्स चेक आउट द फाइनल लीडर बोर्ड पोजीशन. ऑलराइट, अनन्या आई गेस. So Ananya was the fastest, followed by Ishika, then Rachna, then Joanna. Ananya, well done. Ishika, well done. Rachna, well done. Joanna, well done. The best part was you got it all right. Any which ways, commiserations for Pranay, Ujjwal, Shrishti, Zlatan, Aditya, and Rushank. Shall we call it a day, guys? Yes, sir. Any doubts? Rachna, Ishika, Ananya, any doubts? No, sir. Shall we call it a day then? Yeah. All right, guys, this is Pawan Gago signing off. See you in the next video. Till then, take care of yourself. Study well. Bye bye. Bye, sir. Thank you. Bye bye.